बच्चों स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर स्टूडेंट्स आएंगे बीच में तो ज्वाइन करा लिया जाएगा इनको। Still the chapter is same one, units and measurement, and today's topics which we have to carry, and these topics are see one by one. In the very first topic we will discuss about measurement of length, large distances as well as small distances, then measurement of mass and measurement of time. After then we will discuss about accuracy, precision of instruments and errors in measurement. Afterward, systematic errors and random errors. These four topics, and these topics are compiled in in fact 18 slides. So in some of the slides I will explain in a brief way, and you can take the help of PPT. Now the very first, measurement of length. In day-to-day life we generally measure length with the help of a meter scale, or in geometry boxes you have a small scale, and ग्राउंड वगैरह मेज़र करने के लिए आपने देखा होगा कि सर लोगों के पास मेजरिंग टेप्स होते हैं। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस वगैरह में भी मेजरिंग टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फाइनाइट साइज़ के डिस्टेंसेस हैं उनमें आप डायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट मेथड्स का मतलब देयर मस्ट बी सम मेजरिंग डिवाइस, और उस डिवाइस के हेल्प से आप जो है मेजरमेंट्स ले लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस वेरीज फ्रॉम, एक्चुअल में डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, दैट मीन्स कितनी छोटी हो सकती है और बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है। तो अगर छोटी डिस्टेंसेस की बात करूँ तो इट इज़ 10⁻⁻14 मीटर, एंड इट इज़ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, टू द मैक्सिमम वैल्यू 10⁻25 मीटर, and it is radius of universe. The distances ranging from 10⁻⁻5 meter, that means 10⁻⁻5 meter means it is 100th part of 1 millimeter. Remember, 100th part of 1 millimeter. 1 millimeter का आइडिया आप सभी को है। If that 1 millimeter is divided into equal 100 parts, that value is 10⁻⁻5 meter, and this value can be measured directly by using device. And 10⁻2 meter, that is 100 meter, can be measured by direct methods, which involves comparison of the distance or length to be measured with the chosen standard length. Then 100 meter is there. We may measure multiple of 100 meters also, maybe 100, 200, 300, that can be measured, but in day-to-day practices our range is 10⁻⁻5 meter to 10⁻². Though measurement less than 1 millimeter are generally not measured in day-to-day life, and some specific instruments are there to measure distances less than 1 millimeter, and those we use generally in labs or in some industries that can be used. But in day-to-day life our measurement is limited to 1 millimeter, because we can measure 1 millimeter accurately by using a meter scale. Now the examples of the distances: a meter rod can be used to measure distance as small as 10⁻⁻3 meter. This 10⁻⁻3 meter is what? 1 millimeter. It is 1 millimeter. Then a vernier calipers can be used to measure as small as 10⁻⁻4 meter, that is 1/10th of millimeter. Vernier calipers can measure 1/10th of a millimeter. And a screw gauge is used to measure as small as 10⁻⁻5. That means it measures 1/100 millimeter. 1 millimeter को 100 parts में divide करेंगे तो 10⁻⁻5 मीटर आएगा.
ये 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इन तीनों डिस्टेंसेस के मेजरमेंट्स डायरेक्ट मेथड से हो सकते हैं. आफ्टर देन फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस और very large distances, indirect methods are used. That means device is not used, but some indirect methods are used. And we will start with measurement of large distances. In this case, the following indirect methods may be used to measure very large distance. And what are those distances and what are those methods? The very first one is parallax method. And then what is a parallax and what about the parallax method? Let us consider a far away planet P at a distance d from our two eyes. Before taking this example, I would like to explain parallax. Suppose you put a mark on a wall and just see that mark with the help of your right eye, then closing left eye. After then you can open your left eye and close right eye. You can again observe that mark. You will see there is a separation or there is a change of position of the mark when it is observed by either eyes. जैसे आपने वॉल पे कोई स्पॉट लगा दिया या कोई भी जो है छोटी चीज़ हो, कोई स्पॉट हो, कोई सीनरी हो, उसे भी आप देख सकते हैं. एक बार राइट आई से देखिए, एक बार लेफ़्ट आई से देखिए, आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. दिस इज़ नोन एज पैरालैक्स. इसको सिंपल ऐसे एग्जांपल्स भी कर सकते हैं. आप अपनी एक फिंगर अपने आँख के सामने ले जाइए और उसके बाद एक बार राइट आई से देखिए, फिर एक बार लेफ़्ट आई से देखिए. आप देखेंगे कि फिंगर की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्टेड आती है. और अगर आप ये कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि आपको ऐसा ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं. आप करके देखिए एक बार सभी लोग और मुझे मैसेज करिए कि जो मैंने कहा वो ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं. ओके, ऑल आर राइटिंग यस सर, गुड. ओके, देन दिस phenomenon of shifting of a image in background or shifting of position of object in a background is known as parallax. इसी को आप क्या कहते हैं? पैरालैक्स कहते हैं. और इस पैरालैक्स का यूज़ आप लार्ज डिस्टेंसेस के मेजरमेंट में कर सकते हैं. कैसे? नाउ लेट अस कंसीडर अ फार अवे प्लैनेट पी एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम आवर टू आइज. देन इस तरीके से डिस्टेंस डी पे है, एक पोजीशन एल फॉर लेफ़्ट आई, आर फॉर राइट आई. तो दोनों पोजीशन से अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस तो दोनों केसेस में डी ही होगी. और डी डिस्टेंस पे suppose that the line joining the planet to the left eye and the right eye subtend an angle theta in radian. The measurement must be in radian. Angle theta is there, आप देख पा रहे होंगे. And you can use simple trigonometry. The angle theta is called parallax angle or parallactic angle. इसको पैरालैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल कहा जाता है. एंड द डिस्टेंस एल आर यानी दोनों पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है, इट इज़ कॉल्ड बेसिस. इसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज़ नोन एज बेसिस. और अगर आप देखें तो पी, पी एल और पी आर रेडियस की तरह होंगे जिनकी वैल्यू डी के इक्वल है, और बी जो कि एल आर के इक्वल है ये आर्क की तरह यूज़ किया जाएगा. देन आर्क अपॉन रेडियस आप करेंगे तो आपको एंगल थीटा मिल जाएगा. एज द प्लैनेट इज़ फार अवे, b by d, that is small b upon d, is very very less than 1 and therefore theta is very small. डेफिनेटली ये कंपैरिजन क्लियर हुआ. आपने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है? लेफ़्ट और राइट आई के बीच की डिस्टेंस आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर भी नहीं होती है, 10 सेंटीमीटर से कम. और प्लैनेट की डिस्टेंस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होती है, तो थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी. देन टेकिंग द डिस्टेंस एल आर बी एज अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस डी, वी हैव एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. देन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन डी. एंड इफ थीटा इज बी अपॉन डी, you can have the value of distance capital D, that is distance of planet from earth or from
u। तो आपसे और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस इस सिंपल ज्योमेट्री से आ सकती है। इस मेज़रमेंट में क्या करना होगा आपको, यू हैव टू फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू रेडियन में होगी, और अगर आप रेडियन और एंगल डिग्री का जो है रिलेशन देखें तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन की जो वैल्यू है 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो रेडियन में आपको जो है एंगल्स मिलेंगे, इनफैक्ट स्मॉलर एंगल्स मिलते हैं। जैसे 1 डिग्री को छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। तो जैसे टाइम के मेज़रमेंट्स हैं वैसे एंगल के भी छोटे मेज़रमेंट्स आते हैं रेडियंस में। तो 1 डिग्री से भी छोटे एंगल्स होते हैं, इवन कुछ सेकेंड्स के भी हो सकते हैं। और लेफ़्ट और राइट आई की पोजीशन लेंगे तो बहुत छोटा एंगल बनेगा। इसके लिए अगर बहुत फार अवे पॉइंट्स की डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है तो आप अर्थ के दो आइदर अपोजिट साइड के जो एंड्स हैं उनकी पोजीशंस को ले सकते हैं। एक ग्लोब का ईस्ट पार्ट ले लिया, एक ग्लोब का वेस्ट पार्ट ले लिया, और उन दोनों पार्ट को पोजीशन वाइज प्लैनेट से मिलाने की बात है। तो इस तरीके से भी एक पैरालैक्टिक एंगल बनेगा, और बेसिस क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बेसिस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट आई। तो अगर आप अर्थ की दो अपोजिट एंड्स पे लेंगे तो दोनों अपोजिट एंड्स के बीच का डिस्टेंस डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। तो लार्ज डिस्टेंसेस ऐसे भी मेज़र की जाएंगे। इस सिचुएशन में पैरालैक्टिक एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। देन d इक्वल्स टू b अपॉन थीटा। नाउ द मेजरमेंट ऑफ द साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाले में हमने देखा कि हमने किसी प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, और इसी मेथड का यूज़ करके हम किसी सेलेस्टियल बॉडी यानी हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी या स्पेस की किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ भी मेज़र कर सकते हैं। सपोज़ आपको मून का ही साइज़ फाइंड आउट करना है, तो ये स्फेरिकल शेप में मून ले लिया, इसका डायमीटर d, ये अर्थ की सरफेस आ गई। अब मून के दोनों अपोजिट एंड से आप रेज लेंगे जो ई पर किसी पॉइंट पर कन्वर्स करेंगी, यानी अर्थ के किसी पॉइंट पर कन्वर्स करेंगी। आपने देखा, एक बार फिर से देखिए, दो पोजीशंस की तरफ, एक लेफ़्ट एंड की तरफ और एक ग्रीन कलर की लाइन राइट एंड की तरफ है, और एंगल क्या बन जाएगा, अल्फ़ा। सपोज द एंगल एट ई इज़ अल्फ़ा। देन अगेन स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, आर्क अपॉन रेडियस, स्मॉल d, this small d upon capital D, arc upon radius is angle alpha. Same geometry लगेगी। If d is the diameter of the planet and alpha is the angular size of the planet, that is angle subtended by small d at the earth E, then alpha is small d by capital D. The angle alpha can be measured from the same location on the earth. It is the angle between the two directions when two diametrically opposite points of the planet are viewed through the telescope. एक्चुअल में आप डायरेक्ट तो नहीं देख पाएंगे, और डायरेक्ट देखेंगे तो मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं होंगे। तो एक ही पॉइंट से एक लेफ़्ट एंड का एक्सट्रीम देखेंगे, फिर राइट एंड का एक्सट्रीम देखेंगे। कैलिब्रेशन से पता चल जाएगा कि कितना एंगल जो है टेलीस्कोप को शिफ्ट करना पड़ा है, तो आपको एंगल अल्फ़ा मिल जाएगा। सिंस d इज़ नोन, कैपिटल D नोन है अब आपके पास, क्योंकि आपने पहले फर्स्ट वाले मेथड से डिस्टेंस फाइंड आउट किया होगा। तो कैपिटल D अगर पता है, अल्फ़ा की वैल्यू आप मेज़र कर लेंगे, यू विल गेट स्मॉल d, एंड स्मॉल d इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू d। मैं फिर से आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू रेडियंस में लेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे। अगर अल्फ़ा की वैल्यू डिग्री में दी हुई है तो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और रिलेशन आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा जब आप क्लास में बैठते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, और पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होगी। तो 180 डिग्री में कितना रेडियन हो गया, 3.14
14 रेडियन। नाउ एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस अगर आपको मेज़रमेंट करनी हो तब क्या हो सकता है, तो आप जैसे लार्ज डिस्टेंसेस या दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए टेलीस्कोप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जा सकता है। यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ़िलहाल के लिए आप मानिए कि ये एक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है उस पर वर्क करता है। फॉर विजिबल लाइट द रेंज ऑफ वेवलेंथ इज़ फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज़ 10⁻10 मीटर। आपने कहीं बुक्स में मे भी ऐसा भी पढ़ा हो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो दिस इज़ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। हेंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल्स विथ साइजेस स्मॉलर दैन दिस। इस विजिबल पार्ट के रेंज से आप बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। तो जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, लेंसेज का यूज़ करके बनाए जाते हैं, दे आर नोन एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स। उन्हें आप बोलते हैं ऑप्टिकल, लाइट के ऊपर बेस्ड माइक्रोस्कोप्स हैं। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लाइट एक वेव की तरह काम करता है, तो जो कॉन्सेप्ट वेव का लेंसेज के लिए होगा, इलेक्ट्रॉन का वही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है। मे बी केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया हो कि वेन एवर एनी पार्टिकल इज़ मूविंग इट एसोसिएट्स अ वेव विद इट सेल्फ, जिसको मैटर वेव कहा जाता है। तो ये मैटर वेव के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतना काफ़ी है। इलेक्ट्रॉन beams can be focused by properly designed electric and magnetic fields. The resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact that electron can also behave as wave. The wavelength of an electron can be as small as a fraction of an angstrom. ये 1 angstrom से भी जो है छोटी वैल्यूज़ के बराबर की इसकी वेवलेंथ होती है, तो 1 angstrom से छोटी वैल्यूज़ को ये मेज़र कर सकता है। हमें यहाँ पर इसकी वर्किंग और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं डिस्कस करना है। Such electron microscopes with a resolution of 0.6 angstrom have been built and they can almost resolve atoms and molecules in a material. यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी मटेरियल के अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी दिखा सकते हैं। In recent times, tunneling microscopes have been developed in which again the limit of resolution is better than an angstrom. It is possible to estimate the size of molecules. मॉलिकुलर साइज़ को आप इससे मेज़रमेंट कर सकते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि टनलिंग माइक्रोस्कोप होते हैं। एक्चुअल में आप पूछेंगे कि ये टनलिंग क्या हुआ, तो टनलिंग एक तरीके का इफ़ेक्ट है जो क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस किया जाता है। आपके स्कोप से बिल्कुल ऊपर की चीज़ है, तो फ़िलहाल केवल इन्फॉर्मेशन के लिए देयर आर टनलिंग माइक्रोस्कोप्स ऑल्सो। नाउ द सेकेंड वन, एवोगाड्रोज मेथड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। बड़े मॉलिक्यूल के साइज़ को एवोगाड्रो मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये मेथड बहुत ज़्यादा पढ़ने में और लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा है, बट आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। थोड़ा ये हेक्टिक लगेगा आपको, बट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिकुलर साइज ऑफ वन ओलिक एसिड इज़ गिवन बिलो। ओलिक एसिड कोई एसिड का मॉलिक्यूल है। एक ओलिक एसिड इज़ अ सब्सटेंस। इसका मॉलिक्यूल बड़े साइज़ का होता है, 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम का 10 टाइम्स है, 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। ओलिक एसिड इज़ अ सोपी लिक्विड विद लार्ज मॉलिकुलर साइज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर। द आइडिया इज़ टू you have to first form a monomolecular layer of oleic acid on water surface. क्या किया जाएगा, वाटर की सरफेस के ऊपर एक सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर का फॉर्मेशन किया जाएगा और उस लेयर की विड्थ निकाली जाएगी और उस विड्थ से फिर आप जो है मॉलिक्यूल का साइज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही लेयर है मॉलिक्यूल की, तो विड्थ किसके इक्वल होगी, मॉलिकुलर साइज़ के इक्वल होगी। अब मेथड में यही दिया है कि कैसे आप लेयर्स फॉर्म करेंगे। वी डिज़ोल्व 1 cubic centimeter of oleic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. Then take 1 centimeter cube of this solution and dilute it to 20 centimeter cube using alcohol. आपने 20 cc क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 cc
ओलिक एसिड को मिला के एक सोल्यूशन बनाना है और उस सोल्यूशन में से 1 cc यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाल लेना है और फिर उसको डाइल्यूट कर देना है और कितना बना देना है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर. देन so that the concentration of the solution is 1 by 20 into 20 cubic centimeter of oleic acid per cubic centimeter of solution. देखिए आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को 20 में डिज़ोल्व किया था, फिर उसमें से 1 निकाल के फिर से उसको 20 में कर दिया, तो एक्चुअल में जो सोल्यूशन आपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है उसमें कितना आपके पास ओलिक एसिड होगा 1/20 इंटू 20. इतना ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए लार्ज ट्रफ एंड पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन इन द वाटर. अब आप क्या करेंगे, वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर, अगेन जो कैरम खेलने के लिए आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं वही है ये लाइकोपोडियम पाउडर, इसको वाटर की सरफेस पे फैला देंगे और फैलाने के बाद एक बूंद आप जो है ऊपर वाला सोल्यूशन जो आपने अभी बनाया था जिसमें ओलिक एसिड 1/20 इंटू 20 है, इसे आप इसकी एक ड्रॉप डाल देंगे. देन द ओलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड्स इनटू अ थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑन वाटर सरफेस. जैसे ही आप एक बूंद डालेंगे तो ये सरफेस के ऊपर जो है फैल जाएगी सर्कुलर शेप में और इसमें मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बना देगी. ये मोनो मीन्स सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर बन जाएगी. अब क्या करेंगे आप, क्विकली मेज़र द डायमीटर ऑफ अ थिन फिल्म टू गेट इट्स एरिया. आप इस जो है थिन फिल्म, जो सर्कुलर शेप की थिन फिल्म बनी है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और एरिया फाइंड आउट करने के बाद अब मान लीजिए कि उस पूरे थिन फिल्म में n ड्रॉप्स ऑफ वाटर है. सपोज वी हैव ड्रॉप्ड n ड्रॉप्स इन द वाटर. मान लीजिए कि n ड्रॉप्स आपने उस सोल्यूशन की डाली हैं, तो इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप. कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप इज़ n इंटू v क्यूबिक सेंटीमीटर, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द सोल्यूशन n इंटू v इंटू 1/20 इंटू 20. देखिए n इंटू वी तो टोटल वॉल्यूम हो गया और उसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने थे ओलिक एसिड 1/20 इंटू 20, तो एन वी में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कर्सर को आप ध्यान से देखिएगा. एन वी टोटल वॉल्यूम हो गया, ये पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओलिक एसिड का अमाउंट आ जाएगा सोल्यूशन में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में. This solution of oleic acid splits very fast on the surface of water and forms a very thin layer of thickness T. T thickness की लेयर बन गई और एरिया आपने पहले निकाला हुआ है A है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा. If this splits to form a film of area A centimeter square, then the thickness of the film T equals to volume of the film divided by area of the film. या T equals to NV/20 into 20. ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई ओलिक एसिड का वॉल्यूम और इसको A से डिवाइड करेंगे. ये देखिए A से डिवाइड कर देंगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगी. तो इस मेथड से आप ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की थिकनेस या उसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दैट थिकनेस और डायमीटर इज़ इन फैक्ट साइज ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल. इफ़ यू अज्यूम दैट द फिल्म हैज़ मोनोमॉलिक्यूलर थिकनेस, then this becomes the size or diameter of a molecule of oleic acid. The value of this thickness comes out to be of the order of 10⁻⁻9 मीटर. तो इस तरीके से इस सिंपल मेथड से आप जो है मॉलिक्यूलर साइजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स की ही साइज़ आप बता पाएंगे. एंड इट इज़ अगेन इनडायरेक्ट मेथड. वाई इनडायरेक्ट मेथड, आपने एग्जैक्टली मॉलिक्यूल को पकड़ के उसकी थिकनेस नहीं फाइंड आउट की है, दूसरा तरीका निकाला है जिससे कि आपको मॉलिक्यूलर साइज़ मिल जाए. जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, थिकनेस के मेज़रमेंट के लिए ही एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूं. सपोज़ आपकी कॉपी के पेजेस के थिकनेस आपको फाइंड आउट करनी है, तो आसान तरीका क्या है कि आप कवर के पेजेस अलग कर दीजिए और जितने पेजेस की थिकनेस है उसको स्केल से मेज़र कर लीजिए. और सपोज़ ये थिकनेस मान लीजिए 1.2 सेंटीमीटर आती है और सपोज़ नंबर ऑफ़ पेजेस आपके 200 हैं, तो 1.2 सेंटीमीटर को 200 से डिवाइड कर दीजिए.
यू विल गेट थिकनेस ऑफ 1 पेज। तो इसमें क्या किया, आपने डायरेक्टली 1 पेज की थिकनेस नहीं फाइंड आउट की, आपने बहुत सारे पेजेस की थिकनेस फाइंड आउट की और उससे फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करके आपने सिंगल पेज की थिकनेस फाइंड आउट कर ली। दीज टाइप ऑफ मेथड्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड्स। बहुत सारे जो है मेजरमेंट्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट मेथड से किए जाते हैं, और इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको आप कहते हैं रिमोट सेंसिंग। नॉट ओनली लेंथ के अलावा भी बहुत सारे जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं प्लैनेट्स की या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की, वो प्रॉपर्टीज़ जो है इनडायरेक्ट मेथड से ही फाइंड आउट की जाती हैं। जैसे सन का टेम्परेचर सभी जगह दिया रहता है, अब कोई सन के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सन के पास थर्मामीटर लगाने थोड़े गया है, तो दैट इज़ नॉट अ डायरेक्ट मेथड, देयर आर इनडायरेक्ट मेथड्स। देन रेंज ऑफ लेंथ पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻14 मीटर टू ऑर्डर ऑफ 10⁻26। पिछले वाले डेटा में 25 दिया था, आप करेक्ट कर लीजिएगा, 26 मीटर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी 10⁻26 मीटर तक की डिस्टेंसेस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद भी यूनिवर्स होगा, लेकिन हमने देखा नहीं है, तो हमें लगता है या हम कंक्लूड कर लेते हैं कि यूनिवर्स यहीं तक है, बट इट मे एक्सटेंड बियॉन्ड 10⁻26 मीटर। Then we can also use certain special length units for short and large lengths which are given below। जैसे मान लीजिए कि प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस, अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस, ये बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज हैं, तो कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। स्मॉलर यूनिट्स में आपके पास देखिए 1 फर्मी, एंड 1 फर्मी इज़ 10⁻⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम डिस्कस किया था हम लोगों ने अभी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज़ 1.496 into 10⁻11 meter. It is average distance of the sun from the earth. AU stands for astronomical unit. Now the light year, 1 light year is the distance that light travels with a speed of 3 into 10⁸ meter per second in a year. 1 year में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। और मेजरमेंट्स अगर आप देखें तो 9.46 into 10⁻15 मीटर। और याद करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर की जो है डिजिट्स देखिए, उसमें 496 है पॉइंट के भी बाद, तो इसमें 946 है, 9.46, वहाँ 1.496। तो थोड़ा आप आइडिया के लिए ले सकते हैं कि डिजिट्स कैसे इधर उधर करके हमें दूसरी वाली वैल्यू मिल जा रही है। एक में 10 का मल्टीप्लायर है 11 पावर्स और दूसरे में 15। देन 1 पारसेक, दिस इज़ 3.08 into 10⁻16 मीटर, and it is equals to 3.26 light year। है क्या ये? The distance at which average radius of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second। क्या कह रहा है? The distance at which average radius of Earth's orbit, not Earth, Earth's orbit की जो average radius है वो जिस डिस्टेंस के लिए 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाएगी, 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी, उस डिस्टेंस को 1 पारसेक कहते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर देखी जाए तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस डिस्टेंस के लिए 1 सेकेंड का एंगल बनाती है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू को आप लें और उस वैल्यू को उसके दोनों एंड्स को से रेज लीजिए और उनको कन्वर्स कराएं। जिस पॉइंट पर जाके ये मिलेंगी उस पॉइंट पर अगर 1 सेकेंड का एंगल बनता है तो इसे 1 पारसेक कहते हैं। यानी आर्क की लेंथ कितनी हुई? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो गई। अर्थ्स ऑर्बिट की बात कर रहा है, और एवरेज रेडियस अर्थ्स की ऑर्बिट की क्या होगी? इट इज़ एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। आप कमेंट करें फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके अभी केवल मेज़रमेंट डिस्टेंस का हुआ। अगर रेंज का आप रेशियो निकालें तो 10⁻41 1 आएगा। ये मैं स्लाइड जल्दी से हटा दे रहा हूँ
आपके पास पीपीटी में होगा, डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक होंगे ये। देन measurement of mass, the SI unit of mass is kilogram. The prototype of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weights and Measures are available in many other laboratories of different countries. पहले जो प्रोटोटाइप जो है जिसके बेसिस पे किलोग्राम की यूनिट को डिफ़ाइन किया गया था वो बहुत सारी कंट्रीज़ में दिया भी गया है, लेकिन अब तो सिचुएशंस बदल गई हैं, अलग सी डेफिनेशन आ गई है, तो प्रोटोटाइप की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमारा इस समय कंसर्न क्या है? मेज़रमेंट ऑफ मास। हाउ कैन वी मेज़र मास? बहुत सारे फिज़िकल बैलेंसेस होते हैं, आपने देखे होंगे, केमिकल बैलेंसेस, फिज़िकल बैलेंसेस। देन एक्चुअल में केमिस्ट्री में जो आप यूज़ करते हैं उसको केमिकल बैलेंस बोलते हैं, वही चीज़ आप फिज़िक्स में यूज़ करते हैं तो फिज़िकल बैलेंस बोलते हैं। चीज़ एक ही है और ये मोमेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। पैन बैलेंसेस आप देखते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाएं तो मार्केट में जो दो तरफ पैन लगे रहते हैं, एक तरफ मेजर्ड वेट रखते हैं, एक तरफ जो है जिस चीज़ को मेज़र करना है उसे रखते हैं, तो इनको पैन बैलेंसेस बोलते हैं। बीम बैलेंसेस भी बोलते हैं इन्हें। तो ये कुछ बेसिक जो है अप्रोचेज़ हैं जिससे आप मास का मेज़रमेंट कर सकते हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। यूनिफाइड मास एंड ऑल इसके बारे में बताया है। चलिए पढ़ लेते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ। While dealing with atoms and molecules, the kilogram is an inconvenient unit, यानी ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। In this case, there is an important standard unit of mass called unified atomic mass, या इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन अभी भी नहीं दिख रहा है प्रेजेंटेशन? ओके, कोई और प्रेजेंट करने लगा था, मुझे लग रहा था। आया, दिखने लगा? आई होप कि अब आ रहा होगा प्रेजेंटेशन। अभी भी नहीं आया? मुझे अपने मोबाइल पे प्रेजेंटेशन दिख रहा है बच्चों, आपको कैसे नहीं? आप मुझे पिन करिए। और मेरे दो जो है प्रोफाइल्स हैं इसमें, एक तो मैं मोबाइल से हूँ और एक में प्रेजेंटिंग में है। जानवी काला डोंट प्रेजेंट। सर पिन करने पे भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन। ओके सर रिजॉइन करके देखिए एक बार। हाँ, आप रिज्वाइन करिए। अनुस्तुभ इज राइटिंग यस सर। आई होप कि अब दिख रहा है। देखें एक बार और आप लोग। नो सर, लेट मी रिजॉल्व दिस फॉर। सर दिख गया, सर दिख गया, दिख गया। आ गया सर। ओके, सभी लोग कंफर्म करें। यस, यू कैन मैसेज। निखिल को अभी भी नहीं दिख रहा है। निखिल प्रेजेंटिंग, राम यादव प्रेजेंटिंग, उस पर क्लिक करो बच्चे। सर वो यहाँ पर तीन आपके नाम से आ रहे हैं ना, राम यादव, राम यादव, राम यादव, सर तीन नाम आ रहे हैं। हाँ, तो सर नहीं, बीच में है सर। हाँ, सर तो बीच में है नाम, उसमें है प्रेजेंटिंग वाले पे आएगा जिसमें लिखा होगा कि सच एंड सच इज़ प्रेजेंटिंग। तो जो प्रेजेंटिंग है उस पर क्लिक करिए। मैं मोबाइल पे इसलिए लेके रखता हूँ कि कई बार मुझे भी फीडबैक मिलता रहे कि चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो राम यादव प्रेजेंटिंग आ रहा होगा, उसे पिन करिएगा आप लोग। ठीक है, और मैंने वीडियो अपने दोनों में ही ऑफ़ किए हुए हैं तो मैं नहीं दिख रहा हूँगा। निखिल अभी भी नहीं आया बच्चे? आप गलत जगह पिन कर रहे हैं निखिल, बाकी लोगों को दिख रहा है। आप तीन प्रोफाइल मेरे दिख रहे हैं, तीनों में से हर एक को एक एक बार क्लिक करके देखो।
किसी एक पे आएगा। केवल 1-2 मिनट बचे हैं। नाउ जानवी इज राइटिंग दिख रहा है, रेखा उज्ज्वल दिख रहा है, ठीक है। निखिल गुप्ता ने भी यस सर किया। ओके, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे। जानवी काला बेटा डोंट प्रेजेंट, आप करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मेरा प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा। लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है अब? मेरे मोबाइल पे मुझे दिख रहा है, आई होप कि सभी को दिख रहा होगा। ओके, देन यूनिफाइड एटॉमिक मास के बारे में मैं बता रहा था। दिस इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जो कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो स्मॉलर मेज़रमेंट्स लेने हैं तो आप एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे, और डे टू डे लाइफ वाले आप किलोग्राम्स में ले लेते हैं। देन आगे डिस्कस करते हैं इसको। मेज़रमेंट ऑफ मास, ये यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया था, आप पीपीटी में देख लीजिएगा। मेथड्स ऑफ मेजरिंग मास बाय यूजिंग अ कॉमन बैलेंस, लार्ज masses in the universe like planets, stars, etc. based on Newton's law of gravitation can be measured by using gravitational methods. बाकी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के साइज़ को और उसके मास को मेज़र करने के लिए आप ग्रेविटेशनल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल masses of atomic or subatomic particles we make use of mass spectrograph, in which radius of the trajectory is proportional to the mass of the charged particle moving in uniform electric and magnetic field. This is totally informative। कैसे होता है, क्या होता है, अभी इसके बारे में बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स आप इसको डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। ये दोनों जो है, थर्ड वाला तो बिल्कुल आप जो है अपने स्कूलिंग लाइफ में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। देन रेंजेस ऑफ मास, कहाँ से कहाँ तक रेंज है इसकी? 10⁻⁻30 किलोग्राम टू 10⁻55 किलोग्राम। और मैं मास के मेज़रमेंट्स के बाद ये ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम दूसरी क्लास का हो गया है, और हम लोग फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड लेक्चर ही कंटिन्यूएशन में रहेगा। अभी इसमें बहुत सारी जो है स्लाइड्स हैं, टाइम का मेज़रमेंट है, देन बाकी भी चीज़ें हैं। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो आप गूगल क्लासरूम पे भी पूछ सकते हैं, पर्सनल फिज़िक्स वाले ग्रुप के व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और एक बात और कहूँगा, गूगल क्लासरूम पे ज़रूर जाएं और कमेंट करें कि आपने क्लास अटेंड किया, उसके लिए कमेंट यस सर करें। और जब एक पर्सन कमेंट कर दे तो उसी को आप जब क्लिक करेंगे क्लास कमेंट्स में तो आप फर्दर उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो हर कोई अलग अलग जाके कमेंट ना करे, एक बार कमेंट आ गया तो उसी में बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हैं अपने। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। आप लोगों को मौका नहीं मिला आज कुछ पूछने का, होप सो कि कल हम लोग इसको जो है और डिटेल में करेंगे। आप 9:20 के आसपास ज्वाइन करने के लिए आ जाया करें आप लोग, ठीक है? अभी आप जो है अपनी बायो और मैथ्स की क्लास अटेंड कर लें। थैंक यू सो मच, यू कैन लीव नाउ।